سب کن کے پیسے سے؟ وہی مہاجرین جو مدینے میں آئے تھے مسلمان، انہی کا پیسہ، انہی کی دولت جو مکے میں رہ گئی تھی، انہی کے پیسے سے یہ خریدنے گئے تھے شام میں تیر و تلوار اور قافلے کو سجا کر کے تجارت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ آ رہا ہے تو نبی پاک نے صحابہ کو کہا چلو اٹھو، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اچانک ہی چند لوگ جو تھے ان کو ساتھ لیا اور چلے گئے نبی علیہ السلام۔ ابو سفیان نکل گئے۔ ادھر سے جب واپسی ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جنگ میں کہ جب آپ جنگ پر جایا کرتے تھے تو اپنے قافلے اور اپنے لشکر کے آگے آگے 4-5 لوگ اپنی انٹیلیجنس کے جو آپ کو خبر دے، جو آپ کے خبری ہوتے تھے، ان کو بھیجا کرتے تھے آگے آگے 1 مہینے کے فاصلے پر، 15 دن کے فاصلے پر، کہ آگے دشمن کہاں ٹھہر رہا ہے، دشمن کی تعداد کتنی ہے، لشکر کتنا بڑا ہے، یہ سب آ کر کے مجھے بتائے۔ اور یہ لوگ جا کر کے ٹھہرے کہاں پہ؟ ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے جہاں پہ 2 عورتیں تھیں اور وہ دونوں عورتیں بات کر رہی تھی۔ ایک عورت دوسرے سے کہہ رہی ہے بہن تو کب میرا پیسہ دے گی، جلدی دے مجھے بھی کام ہے۔ تو دوسری عورت نے کہا بس 2-4 دن اور رک جاؤ، ادھر سے شام سے مکہ والوں کا ایک قافلہ آنے والا ہے، جب وہ لوگ ادھر سے گزریں گے تو یہیں پہ ان کا قافلہ ٹھہرے گا، تو میں ان کے اونٹوں کو پانی پلاؤں گی، میں ان کی خدمت کروں گی، ایک دن وہ لوگ ٹھہریں گے یہاں تو مجھے پیسہ ملے گا۔ اب یہ بات جب نبی کے جاسوس نے سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس سمجھ گئے کہ قافلہ والے ادھر سے آنے والے ہیں، اور اپنے اونٹ کو انہوں نے وہیں پہ باندھا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ دوڑ کے گئے اور نبی کو جا کر کے خبر دیا یا رسول اللہ قافلہ والے اس راستے سے نہیں بلکہ ادھر سے آنے والے ہیں۔ اب نبی پاک وہاں پہنچتے اس سے پہلے ابو سفیان تجارت کا سارا سامان لے کر کے پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اتنے عقل مند تھے ابو سفیان، اتنا زیرک اور اتنا ذی شعور اور اتنا دانا کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اونٹ کے باندھنے کے نشان ہے، اونٹ کے باندھنے کا نشان ہے۔ ان عورتوں سے پوچھا بتاؤ کون یہاں پہ آیا تھا؟ کہا وہ ادھر سے کچھ لوگ آئے تھے۔ کہا بتاؤ ان کا جانور کہاں پہ تھا؟ کہا یہاں پہ ان کا جانور تھا۔ جب اس کے جانور کے چراگاہ کے پاس گئے، وہاں پہ اونٹ کی مینگنی جو گندگی کرتی ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھا اور اس کو توڑ کر کے دیکھا تو ابو سفیان نے پایا کہ اونٹ کی مینگنی میں مدینے کے کھجور کی گٹھلیاں ہے۔ تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہاں پہ مدینے کا اونٹ آیا ہوا تھا، اس کا مطلب پیچھے پیچھے محمد کا لشکر بھی آنے والا ہے۔ اب مجھے اس قافلے کو بچا کے لے جانا ہوگا ورنہ لوٹ مار ہو جائے گی اور ہمارے پورے قافلے کو چھین لیا جائے گا۔ اب ابو سفیان نے راستہ بدلا اور ایک آدمی کو اور دوڑا کر کے بھیجا مکے میں کہ جا کر کے بولو ان لوگوں کو کہ وہ لوگ آ کر کے اپنے قافلے کو بچائے۔ اب یہ جانے والا دمدم نام تھا اس کا، وہ پہنچا مکے میں اور جا کر کے اپنے کرتے کو پھاڑا، اپنے جانور کے کونچے کو کاٹا، اپنے جانور کے ناک کو کاٹا اور چلا چلا کر کے کہہ رہا ہے اے اہل مکہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو، محمد سے اپنے ساز و سامان کو بچا لو۔ سارے لوگ نکل گئے مکے کے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا قافلہ محمد اور اس کے ساتھی پکڑنے والے ہیں، تمہارا قافلہ بالکل ان کے کنٹرول میں آنے والا ہے، اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے قافلے کے لیے دوڑ پڑو۔ اب اسی وقت ابو جہل نے کہا اب تک تو یہ لوگ ہمارے معبودان کو صرف گالی دیتے تھے، ہمارے معبودان کے خلاف بولتے تھے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے، اب یہ ہمارے ساز و سامان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے ہیں، اب یہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے تجارت کا راستہ بھی روکنے لگے ہیں۔ اب ابو جہل نے کہا سارے لوگ جمع ہو، کیونکہ اس قافلے میں مکے کے ہر سردار کا پیسہ لگا ہوا تھا، تو مکے کا ہر بہادر اب جمع ہوا۔ کتنا جمع ہوا؟ 800 900 1000 اور ایسے لوگ جن میں سے پتہ کیا گیا کہ محمد کے ساتھیوں کے پاس کتنی تلواریں ہیں، بتایا گیا ان کے پاس صرف 2 ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 تلوار لے کے چلیں گے۔ کہا محمد کے پاس کتنی سواری ہے؟ کہا گیا 7 اونٹ ہے۔ تو کہا کہ اس کے پاس 7 اونٹ ہے، ہم 200 اونٹ لے کر کے چلیں گے۔ کہا محمد کے پاس لشکر کتنا ہے؟ کہا پتہ کیا ہم نے تقریباً 250-300 کے آس پاس ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا ہم اس سے 3 گنا لشکر لے کر کے چلیں گے۔ اب ابو جہل اپنا لشکر تیار کر کے یہاں سے چلا اور چل کر کے دوڑ دوڑ کے بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا، اور ابو سفیان کا لشکر دوسرے راستے سے چلتے چلتے مکہ پہنچ گیا۔ قافلہ ان کا
बच गया, जिसको बचाने के लिए अबू जहल जा रहा था। लेकिन ये लोग पहुंचे बदर के मैदान में। बदर का मैदान कौन सा मैदान है? मदीने से तकरीबन 100-120 किलोमीटर के फासले पर है। बदर एक आदमी का नाम है, उसने हजारों साल पहले एक कुआं खुदवाया था, तो उस कुएं का नाम उसी आदमी के नाम पर बदर पड़ गया। और जिस मैदान में ये कुआं था, उस मैदान को भी इसी कुएं के नाम पर बदर कहा जाने लगा। तो अबू जहल जा करके वहां पे पड़ाव करता है और कैसी जमीन को ढूंढता है? ऐसी जमीन जो पथरीली है, जिस पर चलने में भी आसानी हो, जिस पर दौड़ने में भी आसानी हो, और अपने पूरे साजो सामान के साथ वहां पे बैठ गया है। और इधर नबी पाक के दीवाने बस 313 लश्कर लेकर के चल रहे हैं। और 17 रमजान का वक्त है, रमजान का महीना है, और मुसलमानों के लिए पहला ये रमजान का महीना है। और मुसलमान लश्कर जर्रार के से निपटने के लिए और उनसे लड़ने के लिए, और ऐसे लश्कर से लड़ने के लिए जो खुद इस लश्कर से 3 गुना ज्यादा है, और ऐसा लश्कर है जो 65 साल पहले हाथी वाले लश्कर को भी हरा चुका है, उससे मुकाबले के लिए निकल चुके हैं। और क्या है इनके पास? बस 2 या 3 तलवारें, 4 या 5 जिले हैं, मुश्किल से 10 या 12 उनके पास जानवर है। एक जानवर पर 3-3 आदमी सवार होकर के चलता है। नबी पाक भी अपने साथ मौला अली को और एक और सहाबी को रखते हैं कि कुछ दूर तक तुम बैठो, और 2 लोग सवारी की नकेल लेकर के आगे चलेंगे, और दूसरे बैठे, फिर 2 लोग सवारी के नकेल पकड़ करके आगे चलेंगे, फिर तीसरा बैठे। इस तरह बारी बारी बात के नबी पाक और तमाम सहाबा एक सवारी पर 3-3 लोग चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में यहूदी भी मिल रहे हैं, मुनाफिकीन भी ताना दे रहे हैं, मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, किससे जंग के लिए जा रहे हो, किससे लड़ने के लिए जा रहे हो, इतना बड़ा लश्कर है उनका, अगर लड़ने के लिए जा भी रहे हो तलवार तो और ले लो, और अपने अंदर से बहादुरों को भी तो शामिल कर लो, और फौज तो दाखिल कर लो। ना तुम्हारे पास फौज है, ना तुम्हारे पास तलवार है, ना तुम्हारे पास हथियार है। तो उस वक्त सारे मुसलमानों ने तड़प करके कहा, तुम्हें क्या लगता है हम फौज के भरोसे जाया करते हैं, हम तलवार के भरोसे जाया करते हैं? नहीं, न तीरों तेल पर तकिया, न पर्ची पर, न भालों पर भरोसा है तो हमको सिर्फ इस काली कमली वाले पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-मुख्तसर अबू काफिला वहां से चलते चलते आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के बैठे। अब तवज्जो करो, आपको आज यूं नहीं लगेगा कि पोखरी में हो, आपको लगेगा कि यहीं से बैठे बैठे हम बदर का मैदान देख रहे हैं। बता रहा हूँ ना जंग बदर क्या है, अभी तो शुरुआत हो रही है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अपने सहाबा के साथ। अब जाकर के कहाँ पे ठहरा जाए? जो पथरीली जमीन थी, जो अच्छी जगह थी, जो कुएं का इलाका था, उसको तो जाकर के अबू जहल ने कब्जा कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गए रेतीली जमीन पर, जहाँ पे बालू है, गर्मी की शिद्दत है, धूप की तपिश है, और जो रेतीली जमीन है उस पर चलना भी मुश्किल होता है। जो अगर ये मजबूत जमीन है इस पर चलना आसान होता है, लेकिन अगर आपको बालू पर चलना हो तो उस पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। नबी पाक के तमाम साथी, तमाम सहाबा वहीं पे ठहर गए और वहीं पे खेमा लगाया। नबी पाक ने पता करवाया, जाकर के पता करके आओ कितने लोग हैं। तो आने वाले ने बताया कि हमने देख के आया, तादाद की तो पता ही नहीं चल रही हमें कि कितनी तादाद है, जहाँ तक देखते हैं सर ही सर नजर आता है। तो उन्होंने हुजूर ने पूछा, बताओ ये बताओ कि उनके खाने पीने का तरीका क्या है? कहा वो लोग अलग अलग खाना बनाते हैं? कहा नहीं, चूंकि ये बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं, बड़े बड़े इसमें सियादत वाले आए हुए हैं मक्के के, इसलिए हर दिन एक एक सरदार अपने तरफ से दावत करता है। तो हुजूर ने पूछा, ये बताओ कैसी दावत होती है? कहा एक दिन में 9 या 10 ऊंट को ज़बह किया जाता है। नबी पाक ने अंदाजा लगा लिया कि एक ऊंट को 100 आदमी खा सकता है। अगर 10 ऊंट ज़बह होते हैं तो तकरीबन 1000 आदमी आज हमारे सामने मुकाबले के लिए आया हुआ है। नबी पाक ने अपने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा क्या करना है? नबी पाक के सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह। अब नबी पाक ने मशवरा सबको बैठा करके मशवरा करना चाहा। क्यों? क्योंकि जो मदीने लश्कर में मदीने वाले भी सहाबी हैं, मक्के वाले भी सहाबी हैं। मदीने वाले सहाबी से ये अहद हुआ था कि अगर मदीने में कोई हमला करेगा तो सब लोग मिल करके लड़ेंगे। अब ये जो जंग हो रही है मदीने में नहीं हो रही, मदीने के बाहर हो रही है। इसलिए हुजूर को मशवरा करना जरूरी था कि हमसे जो आपका वादा था उस वादे की जरूरत यहाँ पे नहीं है।
क्या आप लोग वाकई यहाँ पे लड़ना चाहेंगे? नबी पाक ने कहा अशीरूनी अशीरूनी, ए मेरे सहाबा मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए, जंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उस वक्त मौला अली फरमाते हैं ए लोगों, कोई उठा कि नहीं उठा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हैं या रसूल अल्लाह? ये वो लोग हैं ना जिनके साथ हम पले बड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनके पैर है, जिनके हाथ है, जो सांस लेते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे देंगे, इंसान तो इंसान, हम जिन्नात से भी लड़ने के लिए तैयार है या रसूल अल्लाह। अब दूसरे मौके पर हुजूर के पास आते हैं मौला अली और उठ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार तो कब से प्यासी है, इन कुफार का खून पीने के लिए आप इजाजत तो दीजिए। नबी पाक ने फिर कहा अशीरूनी अशीरूनी, मुझे इशारा दो, मुझे मशवरा दो, मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए? अब मदीने के सहाबी उठे, उनको लगा कि शायद हुजूर हमारे बारे में कह रहे हैं। अब मदीने के साथ उठे या मिक़दाद उठे और उठ करके उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी मुराद हम हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि हम कुछ मशवरा दें? क्योंकि हमारे लड़ने की तो जिम्मेदारी मदीने में थी, ये मदीने के बाहर की जंग है, तो आप बताइए हमसे आपकी मुराद है? हुजूर ने कहा हाँ बताओ। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपके साथ लड़ना ना होता तो मक्के से बुला करके हम मदीना आपको क्यों बुलाते, मदीने में क्यों लाते? या रसूल अल्लाह, हम वो कौम नहीं है मूसा की तरह जो ये कह दे फज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, कि जाओ तू लड़ और तेरा खुदा लड़े, हम मूसा यहाँ पे बैठ के तमाशा देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हम वो कौम नहीं है कि हम बैठ के तमाशा देखेंगे। आप बैठ के तमाशा देखिए, हम कुफार की गर्दन भी काटेंगे और अपनी गर्दनों को भी कटा देंगे, सुभान अल्लाह। और एक और मदनी साहब उठे और उठ करके उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये किनसे लड़ने की बातें हो रही है? इनके पास तो सिर्फ तीर है, तलवार है, इन जमीन पर हमें झगड़ा करना है, इस जमीन पर हमें जंग करनी है। या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें इशारा कर दे तो जमीन जो जमीन है, हम समंदर में भी उतर के लड़ने के लिए तैयार हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। जरा ऊंची आवाज से बोले, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, मक्की की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बड़ा मुख्तसर करना चाहता हूँ, बार बार मुझे घड़ी भी देखना पड़ता है, मैं बड़ा मुख्तसर करना चाहता हूँ ताकि पूरी बात बता दूं। नबी पाक ने मशवरा कर लिया कि अब इरादा बन गया कि ठीक है